عنوان ناول نگہبانِ عشقم، رائٹر زویا شاہ، کیس نمبر 24 اور 25 پیش خدمت ہے۔ دوستو، آپ سے مجھے چھوٹا سا گلہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں۔ چلو کم از کم اگر آپ کمنٹس نہیں کر سکتے تو لائک کر دیا کریں۔ آپ نے انگوٹھا ہی دبانا ہے اور لائک ہو جانا ہے۔ میری خوشی کے لیے آپ کم از کم ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، مہربانی۔ نوٹ کرائے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کو سینے سے لگی تھی۔ اس کی بے قرار دھڑکنوں کو سکون میسر آیا تھا۔ اسے سختی سے سینے سے لگاتا ہوا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی ہلکی مہک محسوس کرتی ہوئی اس کی شرٹ مٹھی میں دبا گئی تھی۔ وقت روک سا گیا تھا۔ جسٹ لیو، نہ جانے کیا سوچ کر وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے یہ کہنے میں، ہم نہیں جائیں گے، آپ کو چوٹ لگی ہے۔ اس کے ہاتھ پر زخم دے کر وہ گھبراتے ہوئے انکار کر چکی تھی۔ ان چوٹوں کے کیا جو یہاں دی ہیں آپ نے، اس کی آنکھ میں دے کر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی روح تاک کو چھانتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں آنسوں کا جھرنا سا بہہ گیا تھا۔ بڑے بڑے آنسوں کے قطرے اس کے گالوں کو بھگوتے چلے گئے تھے۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ بالکنی میں جا کر سگار سلگاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے باہر اندھیر نگری دنیا کو دیکھ گیا تھا۔ ٹھنڈی جماعت دینے والی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ چاند کہیں بادلوں کی آڑ میں چھپ گیا تھا۔ اسے سگار پیتے ہوئے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ بالکنی میں لگے ہوئے سفید ریشمی پردے ہوا کی تال پر رقص کر رہے تھے۔ بے پرواہ ہونٹوں سے دھواں ہوا میں خارج کرتا ہوا وہ سپاٹ نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پلیز مت پئیں، چادر کا کونا مٹھی میں مروڑتے ہوئے وہ سٹپ ٹائل لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ بغیر کچھ بولے سگار نیچے گراتے ہوئے اسے بے رحمی سے اپنے قیمتی شوز سے رگڑ کر پیروں تلے روند چکا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی جان ہتھیلی پر محسوس ہو رہی تھی اسے۔ نہیں رہنا چاہتی نا اس کمرے میں، چلی جاؤ یہاں سے۔ لہجے میں دنیا جہاں کا سرد پن تھا۔ اس کے لہجے پر لرزتی ہوئی وہ بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس پڑی ڈرائر سے وائن نکال کر گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ مزید سہم گئی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر وہ باہر سے بند تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑے تھے۔ وہ وائن کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس پر وہ دروازے سے پشت لگاتے چپک گئی تھی۔ دروازہ بند ہے، حلق میں اٹکے آنسو کو دھکیلتی ہوئی وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اٹھ کر اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ مکمل دروازے سے چپک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے وہ دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا، جبکہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ مکمل دروازے سے چپکی تھی۔ اتنا خوف کھاتی ہو مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس نازک وجود کی تیز دھڑکن وہ بخوبی سن پا رہا تھا۔ پلیز دور رہیں۔ وہ کانپتے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے دھیرے سے دور کرتی ہوئی ہول ہوتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ نہیں تو کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دل پر رکھتا ہوا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ بڑی بڑی براؤن آنکھوں نے اس کے حسین نقوش کو سرا سے دیکھا تھا۔ سمپل وائٹ شرٹ اور بلو سمپل ٹراؤزر میں وہ رف سے حلیے میں بھی اسے اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ اس کا دل تیزی سے دھڑکا چکا تھا۔ بے بسی سے وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے وجود میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ وہ کانپ گئی تھی۔ اتنا خوف، کسی دن مرمت جانا میرے ہاتھوں سے، کسی دن مر مت جانا میرے ہاتھوں سے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ اس کا چہرہ بے حد قریب کرتے ہوئے خمار لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ہونٹوں نے حرکت کی تھی مگر آواز نہیں نکلی تھی حلق سے۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی مسحور کر دینے والی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ فائن، آپ جا سکتے ہیں، لیکن آئنمنٹ لگانے کے بعد آپ کے اینجل کو بہت درد ہو رہا ہے، دیکھیں۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ لہجے میں نرمی لائے بولا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ گئی تھی۔ اوکے، ہم لگا دیتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کٹ لے کر وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے مرہم اٹھا کر اس کے ہاتھ پر لگانے لگی۔ اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ وہ سنجیدگی سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے عام گندمی رنگت میں نکھرے ہوئے تیکھے نقوش دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی ہوئی وہ ٹینشن سے چادر کو پیشانی پر ڈالتے ہوئے اس کی نظروں سے چھپنے کی ناکام کوشش کر گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر
वो बेपरवाह मुस्कुराया था। हो गया, जल्दी से कहते हुए वो उठी। वो सुरह से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे फरार होने से कबल गिरफ्त में ले चुका था। प्लीज़, आपने कहा था आप हमें जाने देंगे। उसकी मजबूत गिरफ्त में वो फड़फड़ा कर रह गई थी। लेकिन आपने काम पूरा नहीं किया, संजीदगी से कहते हुए वो उसकी ठोड़ी ऊपर उठाते हुए मगरूर लहजे में गोया हुआ था, जिस पर वो घबराते हुए उसकी आंख में देखकर थम गई थी। यहाँ जख्म बाकी हैं। दिल पर उसका हाथ रखते हुए वो सर्द लहजे में बोला था, जबकि उसके दिल की धड़कन महसूस करती हुई वो किसी भी पल बेहोश होने को थी। उसके बेहद करीब खड़ी वो कांप रही थी। उसके दिल की एक एक बीट वो सुन पा रही थी। तो क्या सोचा आपने? आप पूरी रात यहाँ रुकना चाहेंगी या फिर मरहम लगाकर जाना चाहती हैं? एक आईब्रो उठाते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था, जबकि वो बुझती हुई सांसों की शमों को ठमकाने की कोशिश में पलकों की झालर बुझाए नजरें फर्श पर मरकूज किए थर थर कांप रही थी। दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि किसी भी पल हल्क से बाहर आने को था। शर्ट को उतारते हुए उसने एक सर्द सी नज़र उसके लरजते हाथों को देखा था, जिनसे वो बमुश्किल मरहम को उठाए खड़ी थी। बोझल कदमों के साथ वो उसके करीब आकर रुकी थी। नज़रें अब भी झुकी हुई थीं। ब्राउन आंखों में आंसू का झरना बहने को तैयार था, मगर आज वो कोई तरस खाने की नीयत में नहीं था। डू इट, संजीदगी से हुक्म सादर करता हुआ वो उसकी जान हवा कर रहा था। कांपते हुए हाथ को उसने बमुश्किल उसके मजबूत कंधे पर रखा था। वो सपाट नज़रों से उसे डरपोक को देख रहा था। वो आंखें सख्ती से मिचती हुई वो फौरन हाथ वापस खींच चुकी थी। नॉट अ सिंगल चांस। वो हाथ पकड़कर उसे तीखी नज़रों से देखते हुए वो सख्ती से बोला था। टेंशन से होंठ काटती हुई वो खुद को कंपोज करती उसकी जानिब देख गई थी। उसके मजबूत वजूद पर जख्म के साथ जख्म थे। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। बैठते हुए दिल के साथ वो उसके जख्म देख रही थी। ब्राउन आंखों से आंसू बेसाख्ता निकलते चले गए। आखिरकार जज्बात खौफ पर गालिब आ गए थे। वो दिल में उठते तूफान समेटते हुए नाम आंखों से उसे मरहम लगाते हुए बार बार उसकी जानिब देख रही थी, जो कान अखियों से उसे मासूम नकूश को हेजल गरे पुरकशिश आंखों में समो रहा था। पूछना चाहती थी इतनी चोट कैसे आई उसे, मगर जज्बातों ने उसे बोलने लायक नहीं छोड़ा था। हालके में आंसू अटक कर रह गए थे। सकूत इख्तियार किए वो भीगी आंखों के साथ उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए झरझरी सी लेते हुए नजरें उठाकर उसके जानिब देख गई थी। पुरकशिश गरे आंखें उसकी ब्राउन आंखों से टकराई थी। वो उसकी रूह तक उतर गया था उसकी नज़रों से। उसकी आंखों के सैर में वो खुद को हमेशा से बेबस महसूस करती थी। उनमें एक अजीब सी कशिश थी जो उसे ना सिर्फ मुतासिर करती थी बल्कि उसे मशहूर कर देती थी। उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे करीब कर रहा था। वो बेबसी सी पीछे को खिसकी थी, मगर उसकी सख्त गिरफ्त मजीद सख्त हो गई थी। अपने करीब उसे बिठाते हुए वो संजीदगी से उसके चेहरे के एक एक नकूश को देख रहा था, और वो सटापटाई हुई नजरें झुकाए फर्श को घूरने में मसरूफ थी। इतना खौफ क्यों ज़ारा? उसकी सर्द आवाज़ पर वो सहमी हुई होंठों पर कुफल लगाए उसे मैस देख गई थी। हमने भागने की कोशिश की, आप हमसे खफा हैं, आप हमें सजा देंगे जैसे आप बाकियों को देते हैं। वो उंगलियां मरोड़ते हुए नजरें झुकाए लरजते लहजे में बोली थी। सपाट सी नज़रों से उसे देखकर वो उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए धीरे से दबा चुका था। तबस्सुम को मानो करंट सा लगा था। आपको सजा कैसे दे सकता हूँ? गंभीर आवाज़ में कहते हुए उसका चेहरा हाथ में भरते हुए वो मोहब्बत से उसे देखते हुए बोला था। उसके चेहरे को बेहद करीब देखकर वो ठठक कर रह गई थी। घनी पलकों ने झरझरी सी ली थी। उसकी ब्लैक चादर सर से सिरकती हुई उसकी गदमी रंगत को वाज़ेह कर गई थी। मरजान धड़कते दिल के साथ उसका नाम लिया था उसने। से अगेन। उसके ब्राउन सिल्की बालों में चेहरा छुपाते वो संजीदगी से बोला था। वो लरजती हुई आवाज़ में दोबारा बोली थी, मरजान। सुर्ख तपते गालों पर आए बालों को चेहरे से हटाते हुए उसकी आंख में देख रहा था। उसकी सर्द उंगलियों को अपने गर्म होते गालों पर महसूस करती हुई वो आंखें मेच गई थी। बादल जोरदार लहजे में गरजा था। वो करंट खाते हुए उसका कंधा सख्ती से पकड़ गई थी, जिस पर एक हसीन मुस्कुराहट ने उसके होंठों पर रक्स किया था। आप मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रही हैं। उसके कान में सरगोशाना अंदाज में बोलकर वो उसकी जान हवा करने में कामयाब हुआ था। वो जल्दी से उसका कंधा छोड़ती हुई बेबसी से उसे देख चुकी थी। उसके बालों में उंगलियां उलझाए एक हाथ से उसका कंधा थामते हुए वो उसके लरजते हुए होंठों पर झुका था। सख्ती से आंखें मेचती हुई वो कांप गई थी। कमरे में सकूत छा गया था। बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरने की हल्की आहट पैदा कर रही थी। खुनक हवा चल उठी थी। अगले सुबह, सुनी बेटा,
थोड़ी देर रुक जाओ, हरब आता ही होगा। आफरीन बेगम ने उसे बैग कंधे पर रखते हुए देखकर नरमी से कहा था, लेकिन अगले ही पल वो उसके कपड़े देख के हैरान हुई थी। वो तंग जीन्स पर वाइट घुटनों से ऊपर आती शर्ट पहने हुए थी। ये आपके दुपट्टा अस्काफ की सूरत में नहीं। अम्मी, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ, वो न जाने कब तक आएगा, मैं ड्राइवर के साथ ही चली जाऊँगी, जल्दी से कहती हुई वो कुर्सी खींचकर पीछे करती हुई उठी थी। सीढ़ियाँ उतरता हरब उसे देख कर रुका था। एक सर्द सी नज़र उसके लिबास पर पड़ी थी। डोंट वरी, आई विल मैनेज, थैंक्स बाय द वे, मुस्कुराकर उसे कहती हुई वो जल्दी से वहाँ से वॉक आउट कर गई थी। वो संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए आफरीन बेगम को देख गया था, जो अफसुदगी से उसे देख रही थी। कोई बात नहीं बेटा, और नाश्ता कर लो, आफरीन बेगम ने शफकत से कहा था। नहीं, रहने दे, मुझे भूख नहीं है, वो सर्द लहजे में कहते हुए वापस पलटा था, जहाँ किसा बेगम आंखों में ढेरों उदासी लिए उसे देख रही थी। आओ बेटा, नाश्ता कर लो, उसका हाथ नरमी से पकड़ती हुई वो उसे टेबल तक लाई थी। बेटा सब ठीक है ना, कसाब बेगम ने उसकी प्लेट में आमलेट रखते हुए पूछा। वो रात का सोचकर मुट्ठी भींचते हुए गुस्सा जब्त कर गया था। आफरीन बेगम ने परेशानी से उसकी पेशानी पर आए हुए बाल देखे थे। जी अम्मी जान, सब ठीक है, सर्द लहजे में कहता हुआ वो संजीदगी से नाश्ता करने में मसरूफ़ हुआ था। कसाब बेगम और आफरीन बेगम ने एक दूसरे को परेशानी से देखा था। मेरे ख्याल से उसे क्या पहनना चाहिए, आपको उसे समझाने की ज़रूरत है, अगर बच्चों को समझाया ना जाए ना तो वो बिगड़ जाते हैं। आफरीन बेगम की तरफ देखकर साद लहजे में कहता हुआ वो अपना खाना अधूरा छोड़कर उठकर वहाँ से वॉक आउट कर गया था। आफरीन बेगम ने सर्द आह भरी थी। किस्मत 25। बीबी जी, नाश्ता तैयार है, बड़े साहबजादे आपका नाश्ते की मेज़ पर इंतज़ार कर रहे हैं। वो आखिरी नज़र खुद को मिरर में देखती हुई घबरा कर दरवाजे की तरफ मुड़ी थी। मुलाजमा उससे कुछ देर पहले कपड़े देकर गई थी, मगर आज तक उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उसे अजीब लग रहा था। जी हम आते हैं, वो बालों में बुरश फेरते हुए जल्दी से बोली थी। हमें बहुत अजीब लग रहा है, मिरर में देखते हुए वो खुद से बोली थी, या फिर वो बेवजह की हिचकिचाहट का शिकार थी। कल रात जो कुछ हुआ उसे बाद से उसे हर शय में ही खामियां नज़र आ रही थी। बेबी पिंक कलर का सिल्क का सूट पहने जिस पर शीशों का काम बड़ी निफासत से किया गया था, सर पर वाइट दुपट्टा ओढ़ती हुई जिस पर गोटा किनारी का काम किया गया था। आखिरी नज़र खुद को मिरर में देकर दरवाज़ा खोलकर कमरे से वॉक आउट कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसे सलाम करती हुई वो कुर्सी खींचकर उससे दूर बैठती। वालेकुम अस्सलाम। एक नज़र में ही उसका तैराना जायज़ा लेते हुए वो संजीदगी से बोला था। उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करती हुई वो दुपट्टा मजीद सर से नीचे करती सुर्ख होते गाल छुपा गई थी। उसे कन्फ्यूज़ देखकर वो मुस्कुराया था। मुलाजमा खामोशी से खाना सर्व करके चली गई थी। दोनों खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करना चाहती थी। कल रात की उसकी गुस्ताखी के बाद वो बेहद शर्मिंदा थी और उसे कतराते हुए बार बार नज़रें उठाकर उसको देखते ही वापस नज़र झुका लेती। आज हम घर वापस जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम कहीं और जाएंगे। उसके अचानक बोलने पर वो लब भींचती हुई उसे सवालिया नज़रों से देख चुकी थी। कहाँ, घबरा कर पूछा था। वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए संजीदगी से उठा था। वो घबरा कर उसकी जानिब देख गई थी। यू विल सी, वो संजीदगी से कहते हुए टेबल से फ़ोन उठाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। वो टेंशन से दुपट्टे का कोना हाथ में दबाते हुए उठी थी। उसके दरवाजे से कान लगाती हुई वो कुछ सुनने की सही में मसरूफ़ हुई थी, जबकि दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर वो संजीदगी से दरवाज़ा खोल चुका था। दरवाज़ा खुलते ही वो सहारा ना पाकर उसके सीने से लगी थी। कब बाज आएंगे आप, उसका नरमी से पकड़ते हुए वो गंभीर आवाज़ में पूछ रहा था। वो जल्दी से झटका खाकर उससे पीछे हटी थी। सर फिर क्या करना है, नदीम ने उसे याद दिलाते हुए कहा। लेट्स गो, उसका हाथ पकड़ते हुए वो एक जानिब चल दिया था, जबकि वो सहमी उसका हाथ देख गई थी। नदीम भी उनके पीछे चल दिया था, इसलिए वो एक तहखाने में उतरता चला गया। अंधेरे में डूबा वो तहखाना देखकर ज़ारा की जान हथेली पर आई थी। वो कांपते हुए हाथों के साथ उसका मजबूत बाजू पकड़कर चल रही थी। लाइट्स ऑन करो और दरवाज़ा खोलो। लेकिन सर, नदीम ने हैरानी से उसकी जानिब देखा था और फिर हाँ में सर हिलाता हुआ एक स्टील रॉड से बना पिंजरे का दरवाज़ा खोल चुका था। कम ऑन ब्यूटी, लेट्स हैव सम फन, उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए वो सर्द भारी लहजे में बोला था, जबकि उसकी रूह तक कांप उठी थी पिंजरे को देखकर। डोंट वरी, छोटा सा पेट है, उसे खाना ही खिलाना है, कम ऑन, उसे कंधों से थाम कर आगे करते हुए वो शरीर लहजे में बोला था। नदीम ने लाइट्स ऑन की थी। वो चीखती हुई उसके मजबूत बाजू को चपक गई थी। नदीम ने हंसी दबाते हुए सर झुकाया था। सामने सोया हुआ ब्लैक पैंथर अपनी सुनहरी आंखें खोलकर
उसे खा जाने वाली नज़रों से देख गया था। वो जल्दी से उठता हुआ उसकी जानिब बढ़ा था। मरजान हमें। वो कांपती हुई उसकी शर्ट मुट्ठी में मरोड़ते हुए सिसकी थी। टेक इट इजी, आगे आ जाएं, आगे जाएं। वो धीरे से अब से खुद से अलग करते हुए आगे कर चुका था। वो कांपती हुई कदम पीछे ले गई थी। मरजान नहीं, प्लीज़, हम आपकी हर बात मानेंगे, प्लीज़ उसे। वो ब्लैक पैंथर चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने रुका था। वो बुरी तरह लरज रही थी, जबकि वो थोड़े फासले पर खड़ा शौक से सब मुलाजा फरमा रहा था। वो ब्लैक पैंथर उसे किसी लजीज खाने की डिश समझकर देख रहा था, जबकि वो अटकी सांसों के साथ मुसलसल पीछे हो रही थी। वो अचानक घुर्राया था। वो कानों पर हाथ देती हुई खौफ से नीचे गिर गई थी। सर, नदीम आगे बढ़ा था, मगर वो उसे हाथ से रुकने का इशारा करते हुए संजीदगी से आगे बढ़ा था। पैंथर ने उसके पीछे रुके हुए मरजान को देखा था। वो खौफजदा नजरों से उसे अपने सामने खड़ा देख रही थी। वो चलते हुए उसके सामने रुका था। उसे सूंघ कर वो सर झुकाए उसके कदमों में बैठ गया था। बे ये क्या कर रहा है? वो खौफजदा होती हुई जल्दी से उठी थी। मरजान ने उसका हाथ पकड़कर पैंथर के सर पर फेरा था। आह! वो हिचकिचाते हुए हाथ पीछे खींच चुकी थी। उसकी सुनहरी आंखें देखकर कुछ नहीं होगा, टेक इट इजी। उसका हाथ दोबारा से उसके सर पर चिल्लाते हुए वो उसके पास बैठा था। खिला उसे ये। उसका खाना तबस्सुम के हवाले करते वो एक और हुक्म सादर कर चुका था, जिस पर वो खौफ से उसे घूर चुकी थी। कुछ नहीं होगा, पैसा हमें खा लेगा। वो खौफजदा लहजे में उसकी चमकती हुई आंखें देखकर हकलाकर बोली थी, जिस पर वो बेसख्ता मुस्कुराया था। कुछ नहीं करेगा, देखे। बड़ी बेफिक्री से वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा चुका था, जिस पर वो पंजा बढ़ाकर उसके हाथ पर रख गया था। तबस्सुम ने हैरत से उसे देखा था। उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ाया था। वो बड़ी खुशी से उसके हाथ से मीठ खा रहा था। हाँ, हमें गुदगुदी हो रही है। वो उसका हाथ चाटते हुए उसके हंसने पर सुनहरी आंखों से उसे देख चुका था। उससे मुस्कुराता देखकर कहीं ना कहीं मरजान काज़मी को भी सुकून मिल गया था। कहाँ आ गई थी तुम लड़की? अपने दोस्तों की याद नहीं आती? लेक्चर हॉल में जूनी के साथ बैठती हुई रिदा और नायाब ने उसे छेड़ा था, जिस पर वो नाक सुकेड़ती हुई आंखें घुमा गई थी। सुना है निकाह हो गया? ज़रूर जीजू की वजह से नहीं आ रही थी, रिदा ने कहका लगाते हुए उसे कंधे से ठोकर लगाई थी। शट अप इडियट। वो बेवकूफ़, मुझे एक आंख नहीं बाता। मुँह बसोरते हुए वो उसकी बुराई कर रही थी। एक एक बात अपने दोस्तों को बता डाली थी। तो इसका मतलब तुम्हारा निकाह हरब से हुआ? उफ, फूटी किस्मत। मरजान जितना हैंडसम नहीं है, नो कंपैरिजन। नायाब ने हाथ मिलाते हुए लापरवाही से कहा, जिस पर वो जल भुन गई। छोड़ो, इतना बुरा भी नहीं है। रिदा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं यार, मुझे मिर्जान ही चाहिए। वो सर्द आह भरते हुए डेस्क पर सर टिकाते हुए आह भरकर बोले, जिस पर नायाब और रिदा ने एक दूसरे की शक्ल देखी। तू अब क्या करोगे? मार दोगे क्या उसे? नायाब ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा, जिस पर जूनी ने डेस्क से सर उठाते हुए गहरी नज़र से उसे देखा था। क्या बकवास कर रही हो? निदा ने नायाब को टोका। एक्चुअली प्लान बुरा नहीं है। जूनी ने मुस्कुराकर नायाब को देखा था, जिस पर वो भी चौंक गई थी। तुम उसे मार दोगी क्या? रिदा ने आधमुँह खोलकर पूछा था। जूनी गहरी सोच में पड़ गई थी। लेक्चर शुरू हो चुका था। प्रोफेसर डाइस पर मौजूद लेक्चर देने में मसरूफ थे। जूनी की सोच कहीं और ही थी। वो यकदम प्रोफेसर की तरफ मुतवज्जा हुई थी। और ये पॉइजन बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन कैच करने से रोकता है। उसका इफेक्ट ब्रेन और हार्ट पर ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन और हार्ट सेल्स वाइड क्वांटिटी में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। वो पेन रखते हुए हाथ उठा चुकी थी। प्रोफेसर बोलते हुए रुके थे। यस मिस जुरेरा। प्रोफेसर, विल यू रिपीट द नेम ऑफ दिस पॉइजन? आई डिडंट हेयर इट प्रॉपरली, सॉरी। नायाब ने चोर नज़रों से रिदा को देखा, जो उसके सवाल पर काफ़ी परेशान हुई थी। साइनाइड। थैंक्स प्रोफेसर। मुस्कुराती हुई वो वापस अपनी सीट पर बैठी थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रिदा ने उसके कान में सरगोशी करते हुए पूछा था। जस्ट वेट एंड वॉच। वो मुंह के डिज़ाइन बनाती हुई बेपरवाही से बुक के वर्क पलटकर बोली थी। हमेशा बहुत शौक है ना तुम्हें फालतू में गालम गलोच करने का। आपको तो मैं बोलने लायक ना छोड़ूं डियर हब्बी। वो दिल में अहद करती हुई उंगली में पेन घुमाती हुई बेवजह मुस्कुराई थी। न्यूयॉर्क, अमेरिका। बिजनेस का दिवालिया निकल जाएगा। आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग? एक एक करके मेरे सारे आदमी मारे हैं। पहले वो ब्लडी प्रिंसिपल, वो इंस्पेक्टर, फिर मेरा लेफ्ट हैंड शहवार। बेवकूफ़, कैसे इन्वेस्टर ढूंढे तुमने? कुर्सी पर घूमते हुए वो सामने पड़ी छोटी सी शीशे की टेबल को पैर मारते हुए गिराकर धड़ा था। रिलैक्स लूसीफर, जस्ट शट अप यू मोरन। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं यहाँ बैठकर अपना नुकसान करूँ? कब तक मटेरियल स्मगलर कर रहे हो? कुछ आइडिया है? मेरा करोड़ों का नुकसान है और तुम्हारे मुताबिक मैं रिलैक्स रहूँ? मिस्टर एक्स कपूर। वो एक ही मिनट में
मिस्टर कपूर की गर्दन दबोचते हुए घुराटदार लहजे में बोला था, वो मर जाएगा लूसीफर। मिस्टर राय ने घबराते हुए मिस्टर कपूर की जानब देखकर कहा, जिसका सुर्ख पड़ गया था। लंबे सांस खारिज करते हुए वो फेंट होने के करीब था। बास्टर्ड, सब बेवकूफ़ है। कोई जानता है आखिर वो सोकाल डेमन कौन है और क्यों दखल अंदाजी कर रहा है मेरे बिजनेस में। मिस्टर कपूर को धड़ाम से नीचे फेंकता हुआ वो फूंकारा। अल्हाम बेहद परेशान है, उसे लगता है कोई उस पर नज़र रखे हुए है। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन मिर्जान काज़मी उसके पीछे पड़ा है, हाथ धोकर। वेट ओ मिनट, मिर्जान काज़मी क्या चाहता है वो? उसका नाम सुनते हुए वो चौंका था। कुछ इल्म नहीं, हर एक डील का सत्यानाश करवा रहा है। हमारे क्लाइंट्स छोड़ चुके हैं हमें। उसे मरवाने की कोशिश की तो हमारे ही 20 लोगों को मार डाला उसने। पाकिस्तान की टिकट बुक करो आराम। मिर्जान काज़मी से 1 on 1 करने का वक्त आ गया। शीशे की बाल मेज पर घुमाते हुए वो अपनी सेक्रेटरी को हुक्म सादर करते हुए उठकर ऑफिस से बाहर निकल गया था। नदीम ने सर झुकाते हुए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था। तबस्सुम ने रुक कर उसे ड्राइविंग सीट पर देखा था। स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ेगा बैठने का। उसके बर्फीले लहजे पर वो जल्दी से सीट पर बैठी थी। नदीम ने दरवाज़ा बंद किया था, उंगली को मरोड़ते हुए। वो सुरा से उसे देखते हुए रुख बदल गई थी। ब्लैक कलर की लैंड क्रूजर फराटे भरती हुई सड़क पर दौड़ गई थी। गाड़ी की स्पीड देखकर वो दुपट्टे को मुट्ठी में जकड़ चुकी थी। डोंट बी स्कैर्ड ब्यूटी, आपकी जान इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, मेरे हाथों से मरेंगी आप। उसका हाथ थाम कर गियर शिफ्ट पर रखते हुए वो उसे अपने मजबूत हाथ से ढांप चुका था, जबकि उसकी जालिम पेशकश पर वो लाभ पीनती हुई हाथ वापस खींच चुकी थी। हमारे साथ बात तमीज़ करने की कोशिश भी मत करिएगा आप, वरना हम नाना साहब से कहेंगे। मुंह फुलाकर कहती हुई वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता, इनोसेंट ब्यूटी, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। बहुत वक्त दे चुका हूँ आपको पहले ही। दोबारा से उसका हाथ होंठों से छूकर दिल पर रख चुका था, जबकि उसके डेथ ढीठपन पर वो आंखें सुकेड़ते हुए दिल में उसे कई अलकाबा से नवाजती कार की विंडो से बाहर देख गई थी। कार एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी शॉप के सामने रुकी थी। लेट्स गो, उसका सीट बेल्ट हटाते हुए वो कार से बाहर निकला था, जबकि वो इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी शॉप को देखते हुए हैरानी से उसे देख रही थी। उसका हाथ पकड़ते हुए वो कार से बाहर निकली थी। वेलकम सर, गार्ड ने उसे फौरन पहचान कर खुश आमदीद कहा था। वो सूरज से सर को खाम देते हुए उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ था। हमें कुछ नहीं लेना, हमें वापस जाना है घर। साहब की नज़रें खुद पर महसूस करती हुई वो सहम कर उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली थी। काउंटर पर खड़े मैनेजर ने खुद उन्हें खुश आमदीद कहा था और वो कलेक्शन उनके सामने रखी थी जिसके लिए वो पहले ही ऑर्डर कर चुका था। हमें कुछ नहीं, उसका हाथ धीरे से दबाते हुए वो उसके मुंह पर कुफल लगा चुका था। सर्द सी नज़र उस पर डालते हुए वो कलेक्शन की तरफ देख रहा था। ट्राई दिस वन, उसकी तरफ एक छोटी सी वाइट डायमंड नोज रिंग बढ़ाते हुए वो संजीदगी से बोला था, जबकि नोज रिंग देखकर वो हैरानी से उसे देख गई थी। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो खुद उसके साथ आया। सामने रखे मिरर में तबस्सुम ने बगैर किसी एहतजाज के वो डायमंड नोज रिंग पहनी थी। घबराते हुए उसने उसकी तरफ देखा था। वो संजीदगी से बिल पे करते हुए उठा था, जबकि उसके इस तरह बेरुखी पर वो उदास हुई थी। उसका हाथ थमे वो बाहर निकला था। जब कुछ खास नहीं लग रही तो यहाँ लाने का क्या मकसद था? सर झुकाए वो धीरे से बोर्ड बढ़ाई थी। सोच रहा हूँ छोड़कर शेरो शायरी में उसकी नफीस नत पर एक किताब लिख दूँ। वो संजीदगी से कार का गेट खोलते हुए बोला था, जिस पर वो हैरानी से उसकी सिमत देखते हुए रुकी थी। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।